Okay, Jishan, so congratulations for getting selected in prestigious PWD department of Jammu and Kashmir, in Jammu and Kashmir Public Service Commission exam. Congrats. Thank you, sir. Okay, so Jishan, you are a wonderful person, and you are the technocrat who got graduation from Aligarh Muslim University and then post graduation from IIT Roorkee. For civil engineers, these two are the prestigious universities of our country. So Jishan, आपके साथ जो मेरी interaction है, I'm very sure this is going to help thousands of students over there, especially the students from Jammu and Kashmir, because of your exposure and because of your journey. तो जिशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप अपना हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें. Which part of Jammu and Kashmir you are from, and from where you had your schoolings and your academic background. So please tell us about that. Okay, so sir, I belong to Yaripora. That's a small place in district Kulgam. Okay. And I did my schooling up to class 10 from this place only, local place. And after which I moved to Aligarh Muslim University. Primarily at that time, I moved for better coaching facilities that I could avail at Aligarh Muslim University. And then I did my intermediates and my bachelor's in civil engineering from that ZHCET, Aligarh Muslim University. And after that, I went for masters in IIT Roorkee. And a masters I completed in the year 2019. And after that, I started preparing for various examinations, mainly focusing on the state-based examinations. Okay, so Jishan, you graduated from Aligarh Muslim University, and you told that आपने वहां से intermediate भी किया. So I was not aware के AMU में under intermediate वगैरह भी होता है. So you mean to say कि 12th वगैरह classes भी अंदर होता है? Is that what you mean to say? जी sir. So you got 12th class also from there, right? Yes sir, 11th 12th मैंने वहीं से किए हैं सर. उससे पहले मतलब मुझे लगता है फर्स्ट क्लास से ही वहाँ स्टार्ट हो जाता है. तो मतलब from the grassroots level up to the highest of the levels including the PhDs, वहाँ से सब कुछ cover हो जाता है. That is wonderful. So because the exposure of Aligarh Muslim University is a prestigious university, और वहाँ का जो exposure है वो world class है. I know that, and IIT Roorkee, needless to say, that was the Thomson Engineering College earlier, and it is the best college for civil engineers. इसमें जिशन आप मेरे को बताएं कि आपने IIT Roorkee में which specialization you got from IIT Roorkee? Sir, structures में आपने किया. Great. And you completed that in 2019, right? Yes sir. 2019 में आपने complete किया. 2020 से वो हो गया, आपका COVID का problem आ गया. So did you do some job or you started preparing for then this your No state sir, exam? I was only preparing for various examinations. फिर आपने एग्जाम का तैयारी स्टार्ट कर दिया. Yes sir. अच्छा, Jishan, you are lucky in the sense that as you know that states में क्या होता है कि बहुत टाइम के बाद सीट्स आती हैं, maybe 5 years 4 years and all. So you did your post graduation and now it is 2022, early 2022. So I believe 2 years में you could reach your destination, your goal. But then there are so many students, right, who keep on preparing so many years and all. Now I want to take your opinion about the students of Jammu and Kashmir, those who are graduate, those who are engineers especially, and maybe if you want to talk about civil engineers, that will also be okay. That what are the options? I mean, how they should plan everything for them. There are so many thousands of students who look forward to you people as their role model and provide them guidance. कि अभी अगर जिन्होंने civil engineering कर रखा है and they aspire to get into good jobs, how they should strategize? उनको कैसे strategy बनाना चाहिए अपना? ओके सर. जो ज्यादातर लोगों की मोटिवेशन होती है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वो ये होती है कि स्टेट के जो डिपार्टमेंट्स है जैसे PWD है या जल शक्ति है, उनमें जॉब मिल जाएगी एज जेई और एई. लेकिन इसका जैसे आपने बताया कि इसका जो इंटरवल होता है रिक्रूटमेंट का वो काफी ज्यादा होता है, 5-6 साल का होता है, और उसके बाद अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है. तो ये मतलब थोड़ा रिस्की गेम हो जाता है. सो मैं अपनी बात करूं, मैंने मेहनत की है, मतलब पढ़ा भी ढंग से था, लेकिन इन द एंड आई गॉट लकी. मैं ऐसे काफी लोगों को जानता हूँ दैट वर equally deserving if not more. So मतलब this is one option but this is definitely very risky. The second thing is कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं. यहाँ कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर उतना डेवलप्ड तो नहीं है, तो उनको अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना है शायद उनको अपना होम स्टेट जो है वो सैक्रिफाइस करना होगा. तो जो होम के साथ जो कंफर्ट आता है वो उनको सैक्रिफाइस करना होगा. एंड देन द थर्ड थिंग इज कि रिसर्च की फील्ड में जा सकते हैं.
रिसर्च का फील्ड दैट इज वेरी एक्साइटिंग, लेकिन क्या है कि ज्यादातर लोग इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, ओवरनाइट रिजल्ट्स चाहते हैं. That was certainly the case with me. I now understand that it is a very exciting field. लेकिन क्या होता है कि हम रिजल्ट्स बहुत जल्दी चाहते हैं, तो हम इस चीज को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं. तो एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि मतलब जब हम बीटेक में आते हैं तो अपना जो है हर फील्ड में एक जो है गुरु या एक मेंटर चूज कर ले. सो इन आवर फील्ड इट वुड बी some guy who works in these government departments like PWD, or some guy who is maybe an IAS officer, or some guy who is doing research in this field, right, or some guy who is working in private sector. तो क्या है कि वो जो है कि होलिस्टिक व्यू में हमें सारी इंफॉर्मेशन जो है अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि किस फील्ड में एग्जैक्टली व्हाट इट एंटेल्स, राइट. तो उसके बाद हम एक वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं कि व्हाट सूट्स मी, व्हाट सूट्स माय प्रायोरिटीज, एंड व्हाट प्रोवाइड्स मी विद अ सॉर्ट ऑफ लाइफ दैट आई वांट फॉर माय सेल्फ, राइट. तो उसके बाद क्या है कि once you have set these priorities, once you have set these goals, then it becomes very easy. So you have to be very clear in mind. The earlier you set your goals, the earlier you are going to ultimately achieve them, right? So yeah, अगर हम मे बी बीटेक के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में वो सब डिसीजंस ले सकते हैं कि मुझे आगे जाके क्या करना है, तो डेफिनेटली जो है कि वो गोल्स हम जल्दी अचीव कर सकते हैं. एंड देन द सेकेंड थिंग इज कि जो क्लैरिटी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें. इसकी वजह से एक तो डिटर्मिनेशन आ जाता है स्टूडेंट में, कैंडिडेट में. एंड देन सेकंड थिंग इज इट सेव्स यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ ट्रॉमा that comes with as the years pass by. So I think a student after he completes his BTech, he's at his optimal level of achieving anything, and then as the years pass by these chances keep on declining, right? That's true. So yeah, I would say कि बहुत ज्यादा क्लियर रहना है और शुरू में ही कि अपने गोल्स को सेट करना है and then work towards them. And yeah. So if I summarize what you said is like career opportunities को explore करने के लिए number one you should see some role model. आप अपना डिसाइड करें कि साहब इसने ऐसा किया था, मेरे को भी ऐसा करना है. वो अपनी फील्ड के आप रोल मॉडल चूज करें, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के हों, पीडब्ल्यूडी में असिस्टेंट इंजीनियर हों. तो वो स्टूडेंट्स डिसाइड करें कि जिशन ने ऐसा किया है या इसने ऐसा किया है तो मैं भी उस डायरेक्शन में जाऊं. सेकंड इज आप फर्स्ट सेकंड ईयर से ही अपने टारगेट की तरफ मूव करना स्टार्ट करें, बिकॉज अर्ली यू डिसाइड, मोर एफर्ट यू पुट, स्ट्रेटेजी आप अच्छा बना सकते हैं, एंड देन यू कैन प्रिपेयर वेल. इंस्टेड के जब एग्जाम निकला उसके 3 महीने के पहले आप तैयारी स्टार्ट करें, यू बेटर प्रिपेयर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. दैट इज द सेकंड थिंग व्हिच यू मेंशन. अच्छा जिशन, एक आप क्योंकि एकेडमिशियन हो, आप बहुत अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से खुद पढ़े हैं, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, IIT रुड़की, दैट इज अ ड्रीम इंस्टीट्यूट फॉर एनी ग्रेजुएट. Now, and you have seen the lifestyle of academician and researchers in these institutes. I'm sure you have seen professors handling the projects, professors teaching in the colleges, going for conferences in Roorkee also and in Aligarh Muslim University. And you yourself said that academics and research can also be a good option. And I know I have visited Jammu and Kashmir, very different places of Jammu and Kashmir, from NIT Ghulam Basha University to NIT Jammu, NIT Srinagar. I have visited that Jammu Kashmir University. So I know that there are so many opportunities in that field also, in so many opportunities in academics and research in Jammu and Kashmir also, क्योंकि बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं वहां पे. अब ये टीचिंग और रिसर्च जो है ना, ये एक टेम्परामेंट वाइज भी होता है कि अगर किसी का टेम्परामेंट है उसमें तो उसको उसमें जाना चाहिए. नो डाउट पेशेंस रिक्वायर्ड है, पीएचडी रिक्वायर्ड है, 3-4 साल पीएचडी में लग सकते हैं आगे. उसके बाद आप एकेडमिक्स एंड रिसर्च का रास्ता चूज कर सकते हैं. लेट मी गिव यू एग्जांपल, लाइक सपोज somebody wants to become professor in NIT Srinagar, or somebody wants to become professor in some university, तो आपके लिए वो भी एक अच्छा रास्ता है. सो ये इसके लिए कैसे किसी को परस्यू करना चाहिए? आपने खुद आंसर किया है इसका कि इसमें पेशेंस बहुत चाहिए, लेकिन डोंट यू थिंक दिस इज आल्सो वेरी गुड ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स? Yes sir, it is definitely a very good option. सर फिर से मैं वही बात करूंगा कि अगर मतलब रिसर्च में किसी को इंटरेस्ट है, सबसे पहले ये करना होगा कि उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि इस चीज को कि इज ही जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन रिसर्च, राइट. So once he's done that, then it would be easy. The process is just following it step by step, right?
सो मे बी आफ्टर सबसे शुरू वाला काम जो है कि जो बीटेक के लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट होता है उसको अच्छे से कर ले, ठीक है सर। तो उसके बाद मास्टर्स में ही कैन ईदर गो फॉर मास्टर्स। अब तो मास्टर्स की जरूरत अलग से भी नहीं है, अब इंटीग्रेटेड होता है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, एमटेक प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड, राइट? सो वी हैव गुड इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री लाइक द आईआईटीज, or maybe they can apply in some foreign institutions, Yes, foreign right? they can So go. there are different criteria for applying in various institutions depending on the country you are applying, right? So yeah. तो वो भी अच्छा है। अच्छा जिशन, अब मैं आता हूँ वापस आपकी इस जॉब के बारे में, असिस्टेंट इंजीनियर, दैट इज व्हाट वी शुड डिस्कस मोर अबाउट दैट आल्सो। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका एक्सपीरियंस कैसा था, यू फेस द इंटरव्यू आल्सो, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था इंटरव्यू बोर्ड के अंदर, बताइए कैसे कैसा रहा था आपका वहां पे? सर इंटरव्यू जो था वो प्योरली टेक्निकल था सर। शुरू में मतलब हमें इंट्रोडक्शन भी नहीं देना था, तो जो चेयरमैन सर थे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया पैनल के सामने, क्योंकि उनके पास फॉर्म रहता है, और उसके बाद फिर प्योरली टेक्निकल इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। फिर पूरा उन्होंने टेक्निकल डायरेक्शन में पूछते रहे आपसे? यस सर। ओके। अच्छा जिशन, मेरे को ये बताइए, जैसे अभी नंबर ऑफ सीट्स तो कम निकली थी आपकी जम्मू एंड कश्मीर में असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह की। अब सुनने मैं एक कोई इंटरव्यू सुन रहा था चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के, he was saying that more number of seats are going to come. So do you have any idea about number of vacancies or seats in Jammu and Kashmir for the students of Jammu and Kashmir अभी जो incoming days में कुछ आने वाली हैं? Any idea about that? नहीं सर, उसका आइडिया तो मुझे नहीं है, लेकिन शायद अगले महीने में कुछ 163 जेईज का एग्जाम होने वाला है जो ऑलरेडी नोटिफाइड है। ओके, बट और आने वाली है इसका कुछ आइडिया आपको नहीं है अभी? नहीं सर, इसका आइडिया नहीं है। तो सर इसके बारे में एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब मैंने भी अपनी बीटेक जो है 2017 में कंप्लीट की थी, और हर 10-15 दिन में ऐसा मुझे वो खबर आती थी कि आप पोस्ट आएंगी, आप पोस्ट आएंगी, लेकिन जब तक ये नोटिफाई नहीं होती है किसी फॉल्स होप में ना रहे, तब तक कह नहीं सकते कुछ भी। जी। लेकिन तब तक आदमी मोटिवेट कैसे रहेगा? क्योंकि सपोज मैं जेई या असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब लेना चाहता हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ और जॉब्स नोटिफाई हो नहीं रही हैं। अगर मैं प्राइवेट में जाता हूँ तो शायद तैयारी ना कर पाऊं, अगर तैयारी करूं तो मेरे को पता नहीं एग्जाम कब होगा। इस सिचुएशन से कैसे हैंडल करना है? तो सर ये जैसे मैंने कहा कि ये थोड़ा रिस्की अफेयर है। हम मतलब हमें हर चीज तो अपने हिसाब से नहीं मिलेगी। जैसे मेरा जो बीटेक था वो 2017 में कंप्लीट हुआ था, एंड आई ऑब्वियसली मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी कि स्टेट में असिस्टेंट इंजीनियर बनना है, लेकिन वो हर चीज अपने हिसाब से नहीं होती है। मतलब अब इट्स 2022 नाउ, राइट? सो इट टुक मी सम वेटिंग एंड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू डू दैट। So and it would have been very risky. I could have been on the other side of the results as well. I'm not going to lie about that, right? So it's a very risky game, and I mean, it could be like you are digging your own grave and then burying yourself in it, right? So I think we should not set our goals very strictly like this. तो अच्छा जिशन, मेरे को ये बताइए, अगर सपोज आपका नहीं होता, अब तो आपका हो गया सिलेक्शन, दिस क्वेश्चन में नॉट बी रेलेवेंट, लेकिन अगर नहीं होता तो स्ट्रेटजी कैसे बनती है आपकी? व्हाट वुड यू हैव डन देन? सर आई विल टेल यू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी कि जब मैं अपने मास्टर्स में था कि मैंने अपना एक चार्ट बनाया था जिसमें मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस थे। तो मैंने जो डिसीजन अल्टीमेटली लिया था वो उसका ये प्रीसपोजिशन ये था कि बाय द एंड ऑफ 2022 आई विल बी एटलीस्ट ए जूनियर इंजीनियर इन माय ओन स्टेट। अच्छा, ओके। तो मैंने ये प्रोबेबिलिटी ली थी कि असिस्टेंट इंजीनियर में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सीट कम होती है, लेकिन जेई में मतलब आई वाज कॉन्फिडेंट एनफ कि जेई में कम से कम हो जाएगा, एंड बाय द एंड ऑफ 2022 एंड आई वाज समहाउ हैप्पी विद दैट। ओके, सो दैट्स हाउ आई टुक माय डिसीजन। तो मतलब आपको एक कुछ स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी वैसे। अच्छा, आपने मेंशन किया कि आपने कुछ ऑप्शंस लिखी थी, वो ऑप्शंस क्या आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहेंगे कि क्या-क्या ऑप्शंस हो सकती हैं जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों के लिए? हाँ, ओके। तो सर एक ऑप्शन तो मेरे पास ये था कि आईआईटी रुड़की का ऑन कैंपस प्लेसमेंट ले ले या ऑफ कैंपस कहीं प्लेसमेंट ले ले, और सर इसके बाद ऑप्शन ये था कि कहीं पीएचडी के लिए चले जाएं। ओके सर। तो इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी था कि टीचिंग लाइन वगैरह में जाएं, तो जैसे ई लर्निंग पोर्टल्स होते हैं, बायजूस, अनअकैडमी वगैरह, या इसके अलावा भी हैं, तो वो सब ज्वाइन कर ले। ये मेरे पास ऑप्शन है।
तो मतलब आपने तब तक सरवाइव करना है जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती, और एक बार सिलेक्शन हो गई तो फिर आप देन यू हैव अचीव्ड योर ड्रीम्स, राइट? यस। अच्छा, अदर देन जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट जॉब्स ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर्स, और भी कोई गवर्नमेंट की जॉब्स को देख सकते हैं क्या बच्चे? जो ऑब्वियसली यूपीएससी इंजीनियरिंग सबसे एक है, लेकिन रेलवे जब से बाहर निकल गया है तो थोड़ा नंबर ऑफ सीट्स की कम हो गया है वहां पे। लेकिन अदर देन जम्मू एंड कश्मीर और कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सिविल इंजीनियर्स एस्पायर कर सकते हैं? अब गेट के थ्रू जो पब्लिक सेक्टर है उसमें ओएनजीसी वगैरह में जॉब्स लगती हैं, आईयूसीएल वगैरह में जॉब लगती हैं सिविल इंजीनियर्स की, और कौन सी ऑप्शंस जिशन आपके ध्यान में आती हैं? सर इसके अलावा ज्यादा ऑप्शंस बचते नहीं है सर। मतलब हमारे यहाँ पे आईटीआई और डिप्लोमा जो कॉलेजेस है वो काफी ज्यादा है, लेकिन उनका जो परमानेंट फैकल्टी है वो रिक्रूट नहीं करते हैं। तो वो शायद एक रास्ता बन सकता था, लेकिन इसके अलावा मुझे और कोई जो गवर्नमेंट सेक्टर में विद इन द स्टेट कोई रास्ता दिखता नहीं है। अच्छा, प्राइवेट एक सेक्टर एक एग्जाम्पल एसएससी है जो एनुअली होता है, एसएससी जेई, तो एक रास्ता हो सकता है। अच्छा, ये प्राइवेट सेक्टर कैसा है जिशन जम्मू एंड कश्मीर में? अगर सिविल इंजीनियर्स के लिए मैं पूछूं तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज किस तरह का है वहां? सर ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड वे में है, और मतलब बहुत छोटी छोटी कंसल्टेंसीज है। और सर कोई मतलब वैसे कोई डिजाइन एज सच वैसे नहीं होता है, बस कॉपी वॉपी वगैरह होता है, ज्यादा कुछ इसमें सर अपॉर्चुनिटीज है नहीं। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज वहां पे नहीं है। जी सर। ओके, तो जिशन जो स्टूडेंट्स, अब आप क्योंकि यू हैड एक्सपोजर ऑफ आईटी रुड़की आल्सो in structures, you have done your masters, that is supposed to be the first choice of students. So those engineers, civil engineers who aspire to go for higher education, let's say masters and all, can you share with us what kind of placement opportunities they may get if they do masters from these reputed institutes? ओके, तो सर सबसे पहले जो है कि जो पीएसयूज हैं, काफी सारी पीएसयूज जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए ऑन कैंपस आ जाती है। जैसे हमारे केस में जो टीएचडीसी है, तहरी डैम कॉर्पोरेशन, वो आई थी प्लेसमेंट के लिए। इसी तरह काफी सारी जो है पीएसयूज या मिनी पीएसयूज वो आ जाती है। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज है, एलएनटी वगैरह है, ये सब कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आ जाती है। तो मतलब अगर कोई ढंग से काम करे तो मिल जाएगा कुछ ना कुछ? जी सर, उनको मिल जाएगा। हो सकता है कि एग्जैक्टली जो डिजाइन इंजीनियर का पोस्ट है वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो जो ट्रेनी इंजीनियर है, ग्रेजुएट इंजीनियर, वो सब मिल जाती है, लेकिन थोड़ा डिजाइन इंजीनियर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन सर जो सबसे पहला वाला जो प्लेसमेंट है वो जरा मुश्किल होता है। तो एक बार किसी कंपनी में चले गए, उसके बाद थोड़ा 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेके आसानी से स्विच करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। ओके, अच्छा जिशन, now I have come to almost an end of this wonderful session interaction with you. My last question to you is your life after selection. अभी सिलेक्शन का जब से रिजल्ट आया है, I understand that feeling actually after so many years of uncertainty, years of frustration, years of efforts, when you get selected in your dream job, it has a different feeling. But I want to know through you कि जब से आपका रिजल्ट निकला है तब से लेके अब कैसा लाइफ चल रहा है? How you are having it now? Sir, I would say the biggest thing is that I feel a lot of weight has been lifted off my shoulders, and outside of that, not much has changed. So अभी पूरा mental satisfaction और mental peace चल रहा होगा? Yes sir. So that you are. So when is your joining? Sir, joining का अभी मतलब इन्होंने notify नहीं किया है, शायद 1-2 महीने लग जाएंगे। 1-2 महीने का ज्वाइनिंग का टाइम रहेगा। Yes, चलो, दैट्स वंडरफुल। थैंक्स अ लॉट जिशन, आपने जो इनपुट्स दिया है, आई एम वेरी श्योर जो स्टूडेंट्स सुनेंगे उनको इससे बेनिफिट होगा। आपका जो एक्सपीरियंस है उससे वो गेन करेंगे, और एक दूसरे को देख के ही आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि आपको अगर किसी जर्नी में जाना है तो आपको उस जर्नी के सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, रोल मॉडल होते हैं, उनको फॉलो कर लेना चाहिए, उनके जर्नी से आपको सीख लेना चाहिए कि इन लोगों को इतना एफर्ट लगा है। अब मैं और लोगों से भी इंटरव्यू लेता रहता हूँ, तो लेट मी टेल यू, ऐसे भी स्टूडेंट्स थे। मैंने अभी पीछे एक और कैंडिडेट का भी डाला था उसमें वीडियो, तो ही ग्रेजुएटेड इन आई सपोज 2014। तो आप सोचो 7-8 साल लग जाते हैं अपने ड्रीम डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। सो उतने टाइम पेशेंस रखें और अपना मेहनत करते रहें, एंड किसी ना किसी दिन पॉजिटिवली दे विल गेट इट, राइट? yes, yes. Thanks a lot, Jishan, and again congrats to you, to your entire family, on behalf of your PDF family and all the students over there. Thank you. Thank you sir, thank you for having me.